वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेवलपिंग योर ओन राइटिंग स्टाइल के हवाले से देखेंगे। डेफिनेटली ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा तो आपका राइटिंग जो स्टाइल है वो डेवलप होगा। और हर इंडिविजुअल का राइटिंग जो है पैटर्न अपना अपना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू डेवलप हिज और हर ओन राइटिंग स्टाइल। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टाइल राइटिंग होता क्या है, एनालाइजिंग योर ऑडियंस, ऑडियंस को आपने किस तरह एनालाइज करना है, हु कैन बी योर ऑडियंस, समराइजिंग द फोर पर्पसेस ऑफ राइटिंग और डेवलपिंग योर ओन या इंडिविजुअल राइटिंग स्टाइल्स में। आज के हमारे लेक्चर में ये चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज द स्टाइल इन राइटिंग। थ्री पैसेजेस को हम देखेंगे, उनका डिफरेंट स्टाइल होगा, हम आइडेंटिफाई भी करेंगे। As you read them, think about what qualities make them the same and different from each other. अब एक पैसेज आएगा, फिर उसी दूसरा पैसेज आएगा, वो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स में होंगे। पैसेज नंबर 1 है, It was the best of times, it was the worst of the times, it was the age of wisdom। ये किसी नॉवल में से, A Tale of Two Cities में से है। It was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct to we were all going direct to the other way. In short, the period was so far like the present period, at some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only. चार्ल्स डिकन्स का नॉवल है ये, अ टेल ऑफ टू सिटीज ना। अब पैसेज नंबर 2 है प्राइड एंड प्रेजुडिस का। ये आपने नॉवल पढ़ा भी है या लेटर ऑन आप पढ़ेंगे। यानी डिकन्स का अपना स्टाइल है, जेन ऑस्टन का अपना स्टाइल है। इट वाज अ ट्रूथ universally acknowledged that a single man in the possession of a good fortune must be in want of a wife. However little known the feelings or the views of such a man must be on his first entering a neighborhood. This truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered as the rightful property of someone or other of their daughters. तो ये उसकी माँ कहती है, my dear Mr. Bennet, said his lady to him one day, have you heard that Netherfield Park is to be left at loss? Mr. Bennet replied that he had not. But it is, returned she, for Mrs. Long had just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. Do you not want to know what has taken it? Cried his wife impatiently. You want to tell me, and I have no objection to hearing it. ये जेन ऑस्टन का है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में से नॉवल है उसका। तीसरा पैरा अब हम देखते हैं कि उनमें क्या स्टाइल के डिफरेंसेस आपस में किस तरह आ रहे हैं और थीम एंड कंटेंट के हवाले से भी। Simple everyday upkeep will help maintain the beauty of your new carpet. One important aspect of this care is cleaning up food and beverages spills quickly and correctly. Follow these steps. Blot up as much of the spill as possible. Use a clean white cloth or white paper towels. Try to work quickly so that the liquid does not have time to penetrate the carpet. If the carpet is stained, ये जैसे कारपेट को साफ रखने के तरीके बता रहे हैं। ब्लॉट डाउन, पानी का कतरा कोई गिर पड़ जाए। With a cloth moistened with the warm water. Do not use hot water. It will set the stain. Press down firmly to remove as much liquid as you can. Do not rub the stain because rubbing can change the texture of the carpet. Continue blotting with the clean cloths or paper towels until the stain is gone.
If the stain does not disappear, mix 1/4 warm water with 1 teaspoon mild liquid laundry detergent. Do not use dishwashing detergents or any detergent that contains bleach. Cover the stain with the cleaner, let it sit 5 minutes, then blot up the liquid with clean white cloths or paper towels. ये इस सब उसका थीम था। अब दूसरा ये उसी वो कंटिन्यू है। Rise in the stained area with warm water and blot until the carpet is almost dry. Cover the stain with a few layers of paper towels or the cloths. When the carpet is completely dry, vacuum the carpet. To restore the texture, you may then wish to brush the carpet gently. Deep stains may need a professional stain remover. This can be obtained from your local hardware or carpet store. Follow the directions on the container. If you need additional assistance, call. ये जैसे एडवर्टीजमेंट होती है ना, ये शर्ट्स के ऊपर भी लिखा होता है कि किस तरह इनको धोना है और किस तरह नहीं धोना ना, तो ये क्लीन को धोने और साफ करने का तरीका। और अगर यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम कह रहे थे तो फिर देन कॉल 800555 क्लीन। अब ये लिया कहाँ से गया है ये पैरा? फ्रॉम अ कारपेट केयर मैनुअल। जैसे एसीज वगैरह के मैनुअल्स होते हैं तो कारपेट केयर के मैनुअल से लिया गया ये पैरा। अब आपने देखा होगा कि पैरा नंबर 1, 2 और 3 इन सब के स्टाइल भी डिफरेंट है। यानी पहले वाला जो पैरा नंबर 1 और 2 है उसमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि दोनों राइटर्स का आपस में कंटेंट मैटर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चीज़ों को देखने का अंदाज भी अपना है। और जो तीसरा पैराग्राफ है वो ख़ास किस्म की एक थर्ड डोमेन को डिस्कस कर रहा है। वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है पहले दोनों पैराग्राफ जो है वो लिटरेरी हैं, जबकि तीसरा पैराग्राफ जो है वो नॉन लिटरेरी है। ये भी हमने देखना है लेटर ऑन कि क्या चीज़ होते हैं, कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक पैराग्राफ को लिटरेरी बना देते हैं और दूसरे को नॉन लिटरेरी या नॉन फिक्शनल बना देते हैं। ये सारी चीज़ें लेटर ऑन हम आगे लेक्चर में देखेंगे। Passage 1 and 2 are similar because they are both parts of the novel. As a result, they both tell a story. एक खास किस्म की कहानी बताते हैं। The authors aim to entertain their readers. जबकि passage number 3 in contrast does not tell a story, rather it gives direction कि ऐसे करना है आपने, वैसे करना है, फिर क्लीन को यूं धोना है, फिर उसको आपने प्रेस करना है, फिर किस तरह प्रेस करना है, सुखाना किस तरह है, पानी किस तरह वार्म वाटर डालना है लेकिन इतना वार्म भी ना हो। As a result, its purpose is to instruct. Now look at a little deeper. Passage number 1 has long sentences. पहले पैराग्राफ को अगर हम दोबारा जरा देख लें, ये देख लें, बड़े बड़े सेंटेंसेस, यानी it was the best of the times, it was the worst of time, it was the age of the wisdom, it was the age of foolishness। ये सारा कंटिन्यू पैराग्राफ है। आप देखेंगे जहाँ पे फुल स्टॉप जाकर लगेगा वहाँ पे वो एक सेंटेंस खत्म होगा। It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of the hope, it was the winter of the despair. We had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct to the other way. In short, the period was so far like the present period that some of the noisiest authority insisted on its being received from good or evil in the superlative डिग्री ऑफ द कंपैरिजन ओनली। अब आप यहाँ पे देखें कि इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ जिसे हमने पैसेज 1 शुमार किया है वो एक सेंटेंस के ऊपर है, क्योंकि पहला फुल स्टॉप जो है ना वो यहाँ तक। तो दूसरे वाला भी इसी तरह है। अब हम देखते हैं कि पहले वाले जो सेंटेंसेस थे वो पहले 2 पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस जो हैं वो बड़े लॉन्ग हैं, जबकि जो डायरेक्टिव सेंटेंसेस है थर्ड पैराग्राफ है वो छोटे छोटे उसके सेंटेंसेस हैं। उसके बाद passage 1 has long sentences. Looking more closely, you can see that the entire passage is only one single long sentence, एक पैराग्राफ। Dickens also uses parallel structures. And it was the best time, it was the worst time. एक टाइम में वो अच्छा वक्त भी था, बुरा भी था। इसे पैरेललिज्म कहते हैं। Parallel structure as he matches phrases and clauses
The words are elevated too, as shown in his choice of the words epoch. For example, there is no dialogue, however. Passage number two also has a long sentence, but they are nowhere near as long as the sentence of Dickens uses. ना यानी sentences long तो हैं, लेकिन इतने long sentences नहीं है जितने के Dickens के long sentences हैं. The diction in the is British, as shown in the word let used for rented. यानी कि हमें अल्फाज से पता चलता है. अब अमेरिकन इंग्लिश में ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क नहीं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी में भी फर्क है. हम कहते हैं ना कि अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या फ़र्क है. एक तो कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन का भी फ़र्क है, उसके साथ साथ जो ईडियम होता है, ईडियम जो होता है वो कल्चरल एक्सप्रेशन होता है. तो अमेरिकन कल्चर अपना है. अंग्रेजी ज़ुबान बोलने का मतलब ये नहीं कि दे आर सो शेयर अ सिमिलर कल्चर. ब्रिटिश कल्चर की अपनी खसूसियात हैं, अमेरिकन कल्चर की अपनी खसूसियात हैं. तो हम किसी भी पैराग्राफ को ये भी देख के वो कर सकते हैं कि कहाँ की किस कल्चर में एग्जिस्ट कर रहा है या किस कल्चर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. दिस पैसेज इज डेवलप्ड थ्रू द डायलॉग. बोथ पैसेजेस आर विटी. There is no humor at all in the passage 3. However, इन्हीं जो पहले पैराग्राफ्स हैं वो विट्टी हैं, जबकि तीसरे यानी कि फिक्शनल टाइप के हैं और डायलॉग भी हैं दूसरे वाले पैराग्राफ में, जबकि तीसरा वाला पैसेज में जो है ना डायलॉग नहीं. तो ये वो टेक्निक्स होती हैं, डायलॉग, लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, डेक्लरेटिव स्टेटमेंट हो सकती है, असर्टेटिव हो सकती है. ये वो स्टाइल के एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल है. आगे हम देखेंगे भी सही है कौन से एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल है. The elements of style, as this analysis reveals, different writers have their own distinctive way of writing. A writer's style is his or her distinctive way of writing, कि वो किस तरह नुमायां अंदाज में लिखता है दूसरों से हट कर. स्टाइल इज ए सीरीज ऑफ चॉइसेस. बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टाइल जो है वो सीरीज ऑफ चॉइसेस होती है, शोन ऑन द फॉलोइंग चार्ट. आगे अगले हम चार्ट में देखते हैं कि कौन कौन से चॉइसेस राइटर जो हैं वो. अच्छा, फिर ये चॉइसेस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा चॉइसेस यूज़ करते हैं एक ही, फॉर एग्जांपल उसमें से किसी एक कैटेगरी को, किसी एक एलिमेंट को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे ऑथर जो है वो किसी दूसरे फैक्टर को काउंट कर रहे होते हैं. डिस्क्रिप्शन के हवाले से, यानी ये पहले एलिमेंट्स हैं स्टाइल के कि किसी भी पैसेज की डिस्क्रिप्शन कैसी है, डायलॉग यूज हुए कि नहीं, फिगर ऑफ स्पीच कैसे हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर कैसा है, पंक्चुएशन वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल किए गए, उन पंक्चुएशन वर्ड्स का इस्तेमाल किस तरह, पर्पस कौन सा है, सेंटेंस लेंथ कितनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, टोन्स क्या है, टॉपिक क्या है, वॉइस क्या है और वर्ड्स क्या है. ये सारे बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल है. यानी हम जब भी किसी उसका स्टाइल के आइडेंटिफिकेशन करने लगेंगे तो फिर हम ये आप लिख लें बेशक, यानी भाई उस पैसेज की डिस्क्रिप्शन कैसी हुई है. लाजमी नहीं कि उसमें डायलॉग है या नहीं है. अगर डायलॉग नहीं है तो फिर लेट इट गो. अगर है तो उस एंगल से भी ये बेसिकली कैनन्स हैं. जिस ये एनक है, यूं समझ लें कि जिस एनक से आपने देखना होता है पैराग्राफ को ना. डिस्क्रिप्शन के लिए फॉर एग्जांपल वर्ड्स दैट अपील टू द फाइव सेंसेस. कहीं फाइव सेंसेस के इट वाज लुकिंग, इट वाज द नॉइज, इस तरह के अगर वर्ड उसने यूज किए हैं तो वो सेंसेस की तरफ, डिस्क्रिप्शन की तरफ. हमें यानी अगर खड़ा हो ना कि द स्मोक वाज राइजिंग, तो स्मोक जो है वो नजर आता है आंखों से, तो उसमें से आंख का इस्तेमाल हुआ है, ये सेंस डिस्क्राइब कर रहा है. डायलॉग शोइंग ए करेक्टर्स एग्जैक्ट वर्ड इन द कोटेशन मार्क. डायलॉग से अमूमी तौर पर करेक्टर के माइंड का भी पता चलता है. फिगर ऑफ स्पीच उसने कौन से यूज किए, सिमिलीज, मेटाफर, हाइपरबोला. सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोला का आपको पता होगा. सिमिली कहते हैं कि किसी चीज को किसी और चीज से तशबीह देना, मेटाफर मीन किसी चीज को उदाहरण के तौर पर लेना, और हाइपरबोले कहते हैं कि जी बढ़ा चढ़ा के बयान करना. पैरेलल स्ट्रक्चर में मैचिंग वर्ड्स होती हैं, मैचिंग फ्रेजेस होती हैं, मैचिंग क्लासेस होती हैं. पंक्चुएशन मार्क्स के कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डैशेस कैसे इस्तेमाल हुए हैं ना. पर्पस क्या है बच्चे. हर टेक्स्ट का बेसिकली, मैंने 3 पैराग्राफ पीछे पढ़े हैं तो तीनों पैराग्राफ्स का एक खास किस्म का पर्पस है. उसमें इंटरटेन हो सकता है. पहले पैराग्राफ्स में इंटरटेनिंग था,
यानी एजुकेट, एक्सप्लेन और परसुएड का तीन ये वाले थे, टू इंटरटेन, टू परसुएड एंड टू एक्सप्लेन। ये तीन चीजें जो है ना पहले दोनों पैराग्राफ्स में थी, जबकि तीसरे पैराग्राफ में था टू इंस्ट्रक्ट, गाइड करना ना। तो आपने किसी भी किताब जो पैराग्राफ हो सकता है तो उसको पढ़ के उसका पर्पस ट्रेस आउट करना है कि क्या ये हो सकता है कि कोई भी टेक्स्ट हो वो ये चारों के चारों पर्पस सपोर्ट कर रही हो, एंटरटेन भी कर रही हो, इंस्ट्रक्ट भी कर रही हो, परसुएड भी कर रही हो, एक्सप्लेन भी कर रही हो, लेकिन कम से कम एक दो फंक्शन तो वो जरूर परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि अगर टेक्स्ट जो है वो पर्पस बेस्ड ना हो तो दैट डज नॉट क्रिएट अ लॉजिक। सेंटेंस लेंथ किस तरह की है, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, मिडिल लेंथ सेंटेंसेस हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का है, कोटेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, एक्सक्लेमेशंस हैं, कमांड्स हैं, और टोन कैसा है, ह्यूमरस, ये इंतहाई ज़रूरी है कि कोई भी पैराग्राफ पढ़कर आपको जो है ना सेटायर लगता है, आयरनी लगती है, ह्यूमरस लगता है, सोबर लगता है, सीरियस लगता है, अनसीरियस लगता है, मैटर ऑफ फैक्ट लगता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। ये एलिमेंट्स यानी फाइनल में मैं जो एनालिसिस दूंगा तो बेसिकली आपने एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल ढूंढने होंगे कि किसी भी पैराग्राफ को मैं दे दूंगा। तो टॉपिक जो है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द राइटिंग किसको, यानी जो राइटर का एजेंडा है, अगर हम पहले में देखें तो वो बेसिकली इंग्लैंड की जो पोस्ट ये वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन की सोसाइटी थी, यानी कि विक्टोरियन एज को जाहिर कर रहा है चार्ल्स डिकन्स ना, जब मार्केटें धुआं, दैट वाज द एज ऑफ होप एंड डिस्पेयर एट द सेम टाइम ना, तो वो विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसमें वो वुमेन की मैरिजेस के हवाले से या वुमेन की डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात कर रहा है। सब्जेक्ट ऑफ द राइटिंग क्या हो सकता है, वॉइस क्या है, आथर्स का स्टांस होता है टूवर्ड्स द मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे जेन ऑस्टन की पहली लाइन है कि इट इज अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड ट्रूथ that a single man in the possession of a good fortune must be in want of a wife। एक बंदा जिसके पास पैसे हैं तो सिंगल है तो वो लाजिम है कि वो बीवी की तलाश में होगा ना। तो उस वक्त की जो विक्टोरियन एज की वुमेन की तरफ या पैसे वालों की तरफ, दोनों दोनों तरफ बचे, ये नहीं कि सिर्फ वुमेन को किस तरह ट्रीट किया जाता था, बल्कि मेल को भी, यानी वेल्दी मैन जिसके पास पैसा होता था उसे भी किस तरह देखा जाता था, ये भी मतलब एक स्टांस है आथर का ना। तो स्टाइल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग, ये वाले स्टाइल की टाइप्स हैं बच्चे ना। स्टाइल फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, स्टिफ हो सकता है, ग्रैंड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड स्टाइल से मुराद ये हम पढ़ते हैं इसको जॉन मिल्टन को पढ़ते हैं, एल्यूसिव, वजाहत करने वाला, एलिवेटेड, एकेडमिक, रिलैक्स्ड, हीरोइक, आयरॉनिक, कोलोकियल, ब्रीजी, ब्रीजी मतलब ठंडा ठंडा, familiar, rich, serious, technical, sensory, abstract, plain, ornate, ये सारे टाइप्स हो सकती है स्टाइल्स की ना। अब प्रोफेशनल राइटर्स जो होते हैं दे अमूमी तौर पर वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी टेक्निकलिटीज़ को ना। तो some professional writers celebrate from their distinctive writing styles include Jane Austen, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ट्रूमैन कैम्पोट, ये डिफरेंट आथर्स हैं तो इनको अलग अलग मैं नहीं पढ़ सकता। A clear writing style is not restricted to professional writers, however, everyday people get ahead in the part because of their ability to write clearly and effectively. For example, accountants होते हैं, उन्हें भी तो लिखना होता है ना। Accountants must write clear cover letters for their audits। कंप्यूटर जो स्पेशलिस्ट है, they have to write their proposals, write their proposal, or educator write observations of the staff members and the reports of the staff। इंश्योरेंस brokers जो होते हैं write letters soliciting business। lawyers need to make their brief logicals। marketing personas जो होते हैं do sales reports। retailers works often write letters of recommendation and promotion। stock and bond जो traders होते हैं write letters and the prospectus। everyone writes resume, हम में से चाहे किसी की नौकरी हो ना हो लेकिन वो सीवियां जरूर बनाता है।
राइट्स रिज्यूमे, कवर लेटर्स, मेमोज, फैक्सेस, बिजनेस लेटर्स, इवन जिनके ये हम एक दूसरे को जो टेक्स्ट मैसेजेस भी रिप्लाई करते हैं तो वो भी एक खास किस्म के स्टाइल का होता है, हमें पता चल जाता है कि ये फलां बंदे का स्टाइल है। Therefore, we all need to develop an effective writing style that helps us get our point across clearly। ये असल बेसिकली पर्पज होता है कि हमारा स्टाइल इस तरह का हो कि उसमें एम्बिगुइटी ना हो, क्लियरली, कंसाइजली एंड ग्रेसफुली। बच्चे, राइट, आपके जो चॉइसेस ऑफ वर्ड्स होते हैं उनसे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, और वो आपकी जो सोशल पोजीशन होती है उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं। वाइल एवरीवन्स राइटिंग स्टाइल इज एज इंडिविजुअल एज हिज और हर ओन फिंगरप्रिंट्स, यानी हर बंदे के जैसे फिंगरप्रिंट्स अपने अपने होते हैं, तो इसी तरह जो वर्ड्स चॉइसेस होती हैं और राइटिंग स्टाइल्स होते हैं वो भी हर बंदे का इंडिविजुअल है। एवरी राइटिंग स्टाइल शेयर्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये वो वाली चीज़ें हैं जो अब मैं बयान कर रहा हूँ, ये हर जगह पे होती है, हर उसमें। इट सूट्स द टोन टू द रीडर। फॉर एग्जांपल, यू वुड यूज अ रिस्पेक्टफुल टोन इन अ यूलॉजी, funeral speech, but you could use a humorous tone in speech at the birthday party। यानी चाहे कोई बंदा जितना भी होगा ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी कि जहाँ कहीं पे भी आप किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर आप डेथ के ऊपर गए बैठे हैं तो फिर आपकी टोन जो है, मतलब अगर आपसे आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आपकी जो है वो रिस्पेक्टफुल, आप वाइस चांसलर को खत लिख रहे हैं तो फिर आप यूं नहीं लिख सकते देयर वाइस चांसलर ना, तो उसको आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट के अंदाज में लिखना होगा। लेकिन अगर आप किसी फनी पार्टी के ऊपर बैठे हैं तो फिर आप ओए तोए कर सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ द एरर्स इन द ग्रामर एंड द यूज अनलेस फ्रेगमेंट्स आर बीइंग यूज्ड इन द डायलॉग। इट इज फ्री ऑफ एरर्स इन द स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, यानी ये चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन, ग्रामर, यूसेज, ये गलत आपका इस्तेमाल नहीं होता, अनलेस मिस स्पेलिंग आर बीइंग यूज्ड इन द डायलैक्ट। अभी मतलब ये लोग लिख देते हैं आई डोंट नो, यानी आई डी के लिख देते हैं, उसका मतलब होता है आई डोंट नो। तो इस तरह के जो मतलब अगले बंदे को पूछना पड़ता है कि आई डी के का मतलब क्या है। एक्चुअली तो ये उसको पता होता है ना कि आई डू नॉट नो। तो स्टाइल आपका जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली स्टाइल आपका, मैंने ऊपर भी बात की कि कंसाइजली हो, क्लियरली हो और ग्रेसफुली हो। यानी अगर आप एम्बिगुअस हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी भी कोलैप्स हो रही होती है थ्रू योर राइटिंग स्टाइल। इट डज नॉट इंक्लूड ऑफेंसिव वर्ड्स। Writers often change their style for different kinds of writing and to suit different audience. In poetry, for example, an author must use more prose ना। अब ऑडियंस कौन से होते हैं, ऑडियंस के बेसिकली राइटर को अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली लिखना होता है। ऑडियंस इन द स्टाइल, अ राइटर्स ऑडियंस आर द पीपल हु रीड व्हाट यू हैव रिटन। वो कोई भी पढ़ सकता है, ऑडियंस आपको मिले ना मिले, लेकिन यू शुड बी द कॉन्शियस ऑफ द ऑडियंस। टू बी एन इफेक्टिव राइटर एंड स्पीकर यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिएक्ट टू व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट। क्योंकि जब आप किताब लिख लेते हैं या लेटर लिख लेते हैं, सिर्फ तीर से कमान निकले हुए, हम कहते हैं ना कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता, तो जब बच्चे मुंह से लफ्ज निकल जाते हैं वो भी तो वापस नहीं आते ना। तो इसी तरह जो लफ्ज आप अपनी राइटिंग में ले आते हैं तो वो भी फिर वापस नहीं आते। जब वो एक एक दफा ऑडियंस के पास पहुंच जाते हैं तो फिर आप उनको रिट्राइव नहीं कर सकते। Knowing who are you communicating with is a fundamental to the success of any message. You need to tailor your writing style। आपको अपने राइटिंग स्टाइल को टेलर करना है, बेहतर बनाना है, टू सूट द ऑडियंस नीड्स, इंटरेस्ट एंड द गोल्स। यानी कि बेसिकली जब कोई राइटअप कर रहा होता है तो वो अपने ऑडियंस का माइंड पढ़ रहा होता है, उसकी नीड्स, इंटरेस्ट एंड गोल्स के अकॉर्डिंगली लिख रहा होता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एज के हवाले से अगर फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है तो उसको उसके ऑडियंस का डेफिनेटली ख्याल करना चाहिए कि इस एज में इन्होंने खेलना कूदना भी है, गप्पे भी मारनी है, ये सारी चीज़ें वो रखता है ना। तो ऑडियंस का नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है in the development of your writing style. Before you write anything that you wish to share with others, analyze your audience. Ask yourself these questions। ये वाले सवाल आपसे पूछें कि मेरा ऑडियंस कौन है, ऑडियंस का रिएक्शन क्या हो सकता है, ऑडियंस इस बात पे हंसेगा कि रोएगा।
नंबर एक है हु विल बी रीडिंग व्हाट यू हैव रिटन, कि आपने जो लिखा है इसे पढ़ेगा कौन। अच्छा, दूसरे बच्चे उनको हिडन ऑडियंस भी कहते हैं। मतलब एक तो फॉर एग्जांपल मैं 18 से 20 साल की उम्र के लोगों के लिए लिख रहा हूँ, या 18 से 25 साल की उम्र के लिए लोग, मुझे लगता है कि यही सिर्फ मेरे ऑडियंस है, लेकिन लाजमी तो नहीं कि उस किताब को पढ़ेगा भी सिर्फ वही जिसकी उम्र 18 से 25 साल हो सकता है 40 साल वाला भी वो किताब पढ़े। तो आपको सोशल नॉर्म्स और कल्चर्स का भी ख्याल करना है। पॉसिबल ऑडियंस इंक्लूड टीचर्स, क्लासमेट्स, कोलीग्स, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स। ये वो स्ट्रेंजर्स हैं, कोई भी अजनबी हो सकता है। नंबर दो, हाउ मच डू माई रीडर्स नो अबाउट माई टॉपिक एट दिस पॉइंट। आर दे नोविस, नए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और समवेयर इन बिटवीन। यानी अगर कोई एक्सपर्ट लिख रहा है तो उसको अभी आपको डायरेक्ट मतलब टर्मिनोलॉजीज जो है डायरेक्टली वो शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एटम बम के बारे में लिख रहे हैं या किसी और चीज़ के भी जो मतलब, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खत लिख रहे हैं, तो फिर आपने ऐसे ही लिखना है कि जो यूरेनियम की वो होती है, प्योरिफिकेशन होती है या क्लासिफिकेशन होती है, तो वो उसके लिए जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी होती है उस तरह वो लिखेंगे। लेकिन अगर आपका ऑडियंस जो है वो नया है, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे को मतलब पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप उसको और अंदाज में लिख कर समझाएंगे और अंदाज में उसके लिए वो करेंगे। हाउ मच डू यू हाउ मच यूर रीडर्स know about my topic at this point? What information must I provide for my message to be successful? Sometimes you will have to provide a great deal of information to help your readers grasp your message. Other times, in contrast, you will have a little, no information to add. How does my audience feel about this topic? आर दे, अगर आपने पितरस के मजामीन पढ़े होंगे तो वो किस तरह आपने एक वो सबक भी पढ़ा होगा उसका, कल सवेरे जो मेरी आंख खुली ना, तो वो हॉस्टल में पढ़ रहा होता है, तो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर उसने लिखा है। तो ऑडियंस जो है इस टॉपिक के बारे में कैसे महसूस करते हैं? आर दे न्यूट्रल, हॉस्टाइल, enthusiastic, sometimes in between? A hostile audience is much more difficult to reach than a friendly one. What obstacles, if any, must I overcome? कि कौन सी परेशानियां जो जिनके ऊपर मुझे ओवरकम करना चाहिए for my message to be successful? You might, बच्चे अगर आपका मैसेज जो है वो आपके ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकता, तो इट इज़ नॉट द फेलियर या फॉल्ट ऑफ द योर ऑडियंस, बट इट्स योर ओन फॉल्ट ना। तो ऑडियंस का कोई कसूर नहीं होता, आपका अपना कसूर होता। What style of writing does my audience anticipate and prefer? Of course, you will suit your style to your audience needs and expectations. For instance, you could not use long, difficult for the young. Similarly, you would not use many idioms, non-literal phrases जो होती हैं for non-native speakers of the English. ना? Adjust your style to appeal to them and help you achieve your purpose, कि आप अपने ऑडियंस को एनालाइज करें और उस तरह की लैंग्वेज यूज करें ताकि आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए, जो इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के ऊपर। Other times, however, your audience won't be easy to identify. For instance, you might be sending a resume at a cover letter for a job to a job identified by only the most general description and the post office box. In this situation, it is even more critical to get some information about your readers. You must first send a query letter asking for more details. For instance, कि जो आप उनसे पूछ लें, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें वो उनको किस तरह का बंदा चाहिए। तो अब पर्पस एंड स्टाइल ये हम ज़रा देखते हैं कि हर चीज़ का जो डिफरेंट ये टेक्स्ट है उनका पर्पस क्या है। अ लव लेटर का क्या होता है? अ बिजनेस मेमो, अ शॉर्ट स्टोरी, अ पोएम, एन इन्वेंटरी, अ लव लेटर टू IRS explaining a problem with a tax return. Uh, Although each of these documents seems very different, they are all alike in one crucial way. ये सारे मतलब, अब लव लेटर जो है वो और तरह का होता है, बिजनेस मेमो और तरह का होता है, शॉर्ट स्टोरी और तरह की होती है, पोएम और तरह की होती है,
लेकिन ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स शेयर वन कॉमन पॉइंट, और वो ये है कि दे ईच हैव अ क्लियर पर्पस। लव लेटर का भी एक पर्पस होता है, बिजनेस मेमो का भी लेटर पर्पस होता है, आ शॉर्ट स्टोरी, और वो है कम्युनिकेशन। कि कीपिंग योर पर्पस इन माइंड एज यू राइट हेल्प्स यू craft a clear and appropriate style. Uh, we appear to write for many reasons, but remarkably, there are only four purposes of ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ: to explain, to persuade, to describe, and to tell a story ना। अब ये एक चार्ट है, इसमें डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज इस्तेमाल हुए हैं, और राइटिंग्स के पर्पस, डेफिनेशन, और फिर आगे वो है। पर्पस ये है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन कहते हैं किसी चीज़ को नया तारफ अगर करवा रहे हो आप ना। टू एक्सप्लेन, टू शो, टू टेल। जैसे मैनुअल्स हो गए, टीवी का मैनुअल हो गया, एसी का मैनुअल हो गया, रेसिपीज हो गई कि मतलब आपने किस तरह बनाना है, बिजनेस लेटर, उसमें वजाहत दी हुई होती है, यानी अगर आप कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसमें से आप वो कर सकते हैं। टर्म पेपर्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, यानी उसमें ये सारी चीज़ें दी होती हैं कि दरख्त जो है वो सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो इसको एक्सपोजिशन पर्पस में इस्तेमाल होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं, शो करते हैं और टेल करते हैं। फिर न्यूज़ स्टोरी, प्रेस रिलीज, रिपोर्ट्स, ये उसके एग्जांपल्स हैं। विल्स, विल्स वसीयतनामे को कहते हैं। आर्टिकल्स, ये वाले। परसुएशन का माना होता है कन्विंस करना, किसी को खास अपने मकसद के लिए ना कन्विंस करना। तो इसमें आ जाते हैं एग्जांपल्स: क्रिटिकल रिव्यूज, रिज्यूमेज। क्रिटिकल रिव्यूज में अच्छाई बुराइयां दोनों वो निकालते हैं ना। रिज्यूमे, जॉब एवेल्युएशन, लेटर्स टू द एडिटर, स्पीचेस, ये सारी जो है ना परसुएसिव राइटिंग्स में आ जाती है। आगे फिर इसमें कवर लेटर्स हो गए, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन हो गए, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स हो गए, वो परसुएशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने लिखना है कि मेरे घर बिजली नहीं है 5 दिन से, तो वो आप जितना परसुएसिवली लिखेंगे उतना जल्दी वापडा वाले आपका वो लगाने आएंगे, तार लगाने हैं। डिस्क्रिप्शन, टू डिस्क्राइब, जैसे पोएम्स हो गई तो उनके लिए जर्नल्स इस्तेमाल होते हैं। नरेशन, टू टेल अ स्टोरी। अब ये उनकी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। ऑटोबायोग्राफीज हो गई, एनेक्डोट्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, तो ये कहाँ पे फिर बायोग्राफीज, ओरल स्टोरीज और नॉवेल्स में। तो अब हमने क्या पढ़ा कि ये पर्पस ऑफ राइटिंग कौन कौन से हैं: एक्सपोजिशन, परसुएशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। अ डॉक्यूमेंट ऑफन हैज मोर देन वन पर्पस। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। किसी भी इवन लव लेटर जो है दैट कैन बी एन एक्सपोजिशन राइटिंग, दैट मे बी ये कि मतलब आप किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, और एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आप उसमें उससे परसुएट भी कर रहे हो कि आप मेरे साथ शादी भी करें ना। तो इसलिए एक ही किसी डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, बट वन पर्पस यूजुअली डोमिनेट्स। फॉर एग्जांपल, अ लेटर ऑफ कंप्लेंट विल डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड परसुएट। उस मसले को बयान भी करेंगे और परसुएट भी करेंगे। However, its primary purpose is to persuade, as you try to convince your audience to make redress. Redress का माना है मसला हल करना। अब हमने ये सारा पढ़ लिया कि राइटिंग स्टाइल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, पर्पस क्या है, और राइटिंग की टाइप्स किस तरह की होती हैं। अब मेरा आखिरी और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डेवलपिंग योर ओन स्टाइल। As you learned earlier in this chapter, style is made up of many elements. These include sentences, especially their length and structure. Style is also created by description, repetition, voice. यहाँ voice से मुराद आवाज़ नहीं है, हर बंदे का एक स्टांस होता है, उसको voice कहते हैं। Parallel structure and punctuation. Now, नंबर एक, स्टाइल एंड सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे लुक एट these stylistic elements in a greater detail. Suit your sentence length to your topic, कि जैसा आपका टॉपिक है उस तरह के आपके जो है ना सेंटेंसेस होने चाहिए। When your topic is complicated or full of numbers, use short simple sentences to aid understanding. कि कहते हैं कि अल्लाह मियाँ जिसको बर्बाद करना चाहता है तो उसे मैथ पढ़ाने पे लगा देते। तो भाई अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो फिर आप उसे सिंपल छोटे छोटे अल्फाज में समझें। अगर आप सराइकी में तकरीर कर रहे हैं तो फिर आप जितने लंबे सेंटेंसेस बनाते जाएं कुछ नहीं होगा।
When your topic is less complex, use longer sentences with subordination to show how ideas are linked together and to avoid repetition. मतलब फिर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज करते जाएं, सबऑर्डिनेटेड क्लासेस यूज करते जाएं कि जी वो साइकिल जो मैंने लिया था जब मैं नाइन्थ क्लास में था, तब जो मैंने वहाँ से बनवाया था, फलां दुकान से लिया था। तो फिर ये बार बार नहीं कि मैं नाइन्थ क्लास में था, मैंने एक साइकिल लिया था, वो साइकिल मैंने फिर टूट गया था, वो साइकिल फिर मैंने बनवाया था, वो साइकिल फिर मैंने ये किया था। तो फिर एक सेंटेंस में सब कुछ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट कि क्लियर राइटिंग यूजेस सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड टाइप्स टू क्रिएट वेराइटी एंड इंटरेस्ट। ये आप जरूर करें कि क्लियर राइट सेंटेंस राइट करें और डिफरेंट लेंथ के, कोई छोटे हों कुछ बड़े हों, और इससे क्रिएटिव वैरायटी और इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्राफ्ट योर सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी मिक्स सिंपल mix simple compound and complex and compound complex sentences for a more effective style. उसके बाद ओवरऑल ये ज़रा छोड़ दें आप, इसमें रेलेवेंट नहीं है। Overall, vary the length of your sentences, the unbroken rhythm of the monotonous, monotonous कहते हैं कि एक जैसी टोन में बात ना करें। सेंटेंस लेंथ क्रिएट्स अ डल स्टाइल, यानी मुख्तलिफ आप यानी कि आपका स्टाइल जो है वो विद इन राइटिंग भी चेंज होता जाए, कभी सीरियस हो जाए, कभी ह्यूमरस हो जाए। सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू एम्फसाइज। Since readers focus on the subject of your sentence, make it most important aspect of each thought. हर पैराग्राफ में जो है ना आप नया ख्याल दें, और छूटा भी हो, नया हो, रिपीटेडली ना हो। व्हेन यू रिपीट द थिंग्स तो ऑटोमेटिकली आप अपना इम्पैक्ट लूज कर देते हैं। ये स्टाइल एंड द डिस्क्रिप्शन को आपने किस तरह इम्प्रूव करना है। ऐड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू अ सेंटेंस व्हेन सूटेबल फॉर द एम्फेसिस एंड वेराइटी। Expand sentences with adjectives and adverbs. When you want to avoid a very brief sentence, add modifiers. यानी modifiers उसको जो मज़ीद बेहतर करते हैं। Base your decision to expand a sentence on its focus and how it works in the context of the surrounding sentences. Use verbs rather than nouns to communicate your ideas. This makes your writing more forceful and less worldly. For example, replace forms of to be with the action verbs as follow example, जैसे weak, ये weak है और improved इसमें आप देखते जाएंगे। The advantages of shopping ahead is saving time and money। ये weak से expression है। is जो है ये हेल्पिंग वर्ब टू बी की फॉर्म इज हो गया ना, जबकि अब द शॉपिंग हेड्स विल सेव यू टाइम एंड मनी ना, तो ये एक्शन वर्ब हैं। विल सेव, सेव जो है यहाँ पे एक्शन वर्ब है। स्टाइल एंड रेपिटिशन, स्टाइल हर उस लम्हे के साथ, सेंटेंसेस के साथ, पैराग्राफ्स के साथ चेंज होता जाना चाहिए, लेकिन रेपिटिशन ऑफ द सेम आइडियाज नहीं होनी चाहिए। रिपीट कीवर्ड्स, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि राइटर आपका जो है, आप किसी भी उसके ऊपर कहते हैं कि बात करें, ये ना हो कि आपकी बात बहावलपुर के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है तो थोड़ी देर बाद आप मरी गए बैठे। तो वर्ड्स जो है वो ऑन ट्रैक, कहते हैं कि सिंपली मैं शायरी की डेफिनेशन बताता हूँ, अक्सर अमूमी तौर पर बताता हूँ। कहते हैं कि शायरी ऐसे होनी चाहिए, पोइट्री शुड बी एज नेचुरल एज लीव्स टू द ट्रीज ना, जैसे दरख्तों के ऊपर पत्ते उगते हैं ना, तो शायरी भी इसी तरह होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। तो बच्चे जो हमारी टॉक होती है वो नेचुरल और लिंक्ड वन होती है, कि जो हमारी पिछली बात होती है वो अगली बात के साथ कनेक्टिव होती है। तो हमें इसी तरह करना चाहिए, ना कि कभी कहाँ की बात कभी कहाँ की बात ना। Only repeat the words that contain a main idea, that use rhythm to focus attention on a main idea. Repetition is a key element in many of our most famous speeches, such as John F. Kennedy's जो inaugural address था। Kennedy used repetition to capture the cadence of the natural speed to create one of the most memorable lines of the 20th century। ये उसकी लाइन है। And so, my fellow Americans, ask
not what your country can do for you, ask what you can do for your country। कहते ये ना कहो कि मुल्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये देखो कि तुम मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। जैसे भुट्टो का स्टाइल अपना है। अ, तो स्टाइल एंड वॉइस जो है, यूज द एक्टिव वॉइस नॉट द पैसिव वॉइस एज यू लर्नड इन द अर्लियर चैप्टर्स। और इनफॉर्मल इन इनफॉर्मल राइटिंग यूज द प्रोनाउन यू टू एंगेज योर ऑडियंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में नॉवल भी लिखे जाते हैं। मोहसिन हामिद का नॉवल जो हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, दैट इज रिटन इन द सेकंड पर्सनल प्रोनाउन ना। ये सेकंड पर्सनल प्रोनाउन में राइटिंग नॉवल लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। मोहसिन हामिद तो आपने पढ़ा होगा, उसका जो ये नॉवल है हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, वो सेकंड प्रोनाउन में लिखा हुआ है। एक दो नॉवल और भी है, इट्स नॉट इजी टू राइट इन सेकंड प्रोनाउन ना। Rather than the third person, he or she gives one your writing more impact, because it directly addresses the readers, as this example shows. Weak head deductions from one's account will be posted on the first of the month। कोई जो डिडक्ट किया, अब इम्प्रूव्ड है, डिडक्शन फ्रॉम योर अकाउंट विल बी पोस्टेड ऑन द, तो वो देखा ना पहला, फ्रॉम वंस अकाउंट, उससे उससे फ्रॉम योर अकाउंट विल बी ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ। इट्स मोर क्लियर और वो फोकस्ड वन है। Style and the punctuation, your choice of the punctuation also has a critical influence on the writing style, because it determines the degree of the linkage between the sentences. Further, it suggests whether sentence elements are coordinating or subordinating. Here are some guidelines. Use a period to show a full separation between the ideas। यानी हर आइडिया जो है, जैसे हम कहते हैं ना कॉमा चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता जाता है, तो इसी तरह आप अलग-अलग वाज़ेह अंदाज में लिखें। However, be aware that a series of short declarative sentences often create a tense and choppy style। बात बात के ऊपर आप वो घुमा के रखें। Use a comma and a coordinating conjunction to show the following relationship, यानी addition, choice, sequence, contrast और cast, इनके लिए आपने मुख्तलिफ यूज़ करना। Use a semicolon to show that the second sentence complete the content of the first sentence। कोलन हम यहाँ सेमी कोलन वहाँ पे यूज करते हैं। सेमी कोलन सजेस्ट अ लिंक between but leaves it to the readers to make the connection। Use a semicolon and conjunctions, adverbs such as the nevertheless, however। बेसिकली ये जो कंजंक्शन करने वाले सेमी कोलन हैं, ये भी बंदे को हम कहते हैं ना कि ही वाज अ गुड रीडर, हाउएवर, लेकिन फौरन ऐसे रीडर को, जो रीडर के कान होते हैं वो खड़े हो जाते हैं इन अल्फाज के ऊपर, नेवरथलेस, हाउएवर, इस तरह के वर्ड की चॉइसेस से ना रीडर अटेंटिव हो जाता है। To show the relationship between the ideas, addition, in addition to this, consequence, contrast, use, effect, time, emphasis, addition, ये सारे चीज़ें जो रीडर्स को कॉन्शियस करते हैं। तो आज हमने फिर क्या पढ़ा कि स्टाइल जो है इज अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव वे ऑफ राइटिंग। Always tailor your style to suit your audience and your readers। Also consider your purpose to इनके के राइटिंग का आपका पर्पस क्या है, टू इंटरटेन, टू एक्सप्लेन, टू टेल अ स्टोरी, टू परसुएड। और एलिमेंट्स उसके हमने डिफरेंट देखे। और फिर आपके लिए ये है कि क्रिएट यूर स्टाइल, जो मैं फाइनल में पेपर दूंगा तो वो इसी तरह के दैट वुड बी मेजरिंग यूर स्टाइल, कि आप क्रिएटिवली कितना, मिड टर्म में भी हमने इसी तरह का देखा था आपका स्टाइल को, तो फाइनल में भी हम ज़रा देखेंगे। अब मैंने आपको वो भी कर दिए ना कि किस तरह आपने उसे इम्प्रूव करना है। क्रिएट स्टाइल थ्रू योर चॉइसेस इंक्लूडिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पंक्चुएशन मार्क्स ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड अपने स्टाइल के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।